मैं आप लोगों से प्रीच करने से पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को पहले प्रीच करूँ। Before preaching to all of you, I want that I should first of all preach myself. और ये बात जो मैं आप लोगों को बताने से पहले मैं अपने जीवन में अपने आप को जज करना चाहता हूँ। And before telling these things to you, I first of all want to examine myself and judge myself. मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि यीशु ने कहा कि तुम सकेत मार्ग से प्रवेश करो जिसमें हमको जीवन मिल सकता है। So the fact which I am going to tell is has been said by Jesus Christ himself that enter through the narrow gate, because through this gate you will enter life. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमको कोई लॉ देने के लिए नहीं आया, बट यीशु मसीह वचन कहता है कि यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए आया। So Jesus Christ did not come into this world to give us any law, but the word says that he came into this world to give us life. और मैं बताना चाहता हूँ कि सकेत मार्ग क्या है। So I want to tell you that what exactly is the narrow gate. मैं मेरे लिए क्या सकेत मार्ग है, या मैं देखता हूँ कि प्रभु सकेत मार्ग यीशु मसीह क्या बोलना क्या चाह रहा है। अगर हम देखते मत्ती 7:13 में यीशु मसीह बता रहा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चकाल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचती है, बहुत तेरे हैं जो इससे प्रवेश करते हैं। और 14 में इस तरह लिखा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकार है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े ही उसे पाते। So I want to tell you from the word which Jesus Christ has said, and he has said in Matthew 7 verse 13 and 14 that enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is narrow and the way is constricted that leads to life, and there are few who find it. और मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह ये एंड ऑफ द सरमन, हम देखते हैं कि जो पहाड़ी उपदेश है उसमें यीशु मसीह ने बताया, and I see that towards the end of the Sermon on the Mount, Jesus Christ has said these things. और यीशु मसीह बता रहा है कि सकर मार्ग से तुम प्रवेश करो। और सकर मार्ग क्या है? So Jesus Christ is telling us that you enter through the narrow gate, and what exactly is this narrow way? तो हम देखते हैं कि प्रीवियस वर्ड में हम देखेंगे तो सकर मार्ग हम देखते हैं कि मैं इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि मत्ती 5 और 6 और 7 हम पढ़ेंगे, वो सारा सकर मार्ग मुझे लगता है। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह वहां पर बता रहे, मत्ती 5:21 में लिख रहा है कि तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। So regarding the narrow way, we can turn on to the previous chapters, and it is mentioned in chapter 5, 6 and 7, the whole narrow way and the narrow gate. Regarding it is mentioned there, and it is mentioned in Matthew 5 verse 21 that you have heard that the ancients were told, you shall not murder, and whoever commits murder shall be answerable to the court. और मैंने अपने लाइफ टाइम में मैंने कभी मर्डर नहीं किया किसी का। So in my whole life, I have not murdered anybody. So यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे कि हम सभी भाई यहाँ पर जो बैठे जो सुन रहे, कोई भी मर्डर किया नहीं है और ना ही करना चाहता है। And all of us who are hearing these words, and we are all of us who are joined here, nobody amongst us is such who has murdered anybody, or in future anybody wants to murder anybody. और हम देखते हैं कि ये कितना आसान है कि हम किसी को जाके
फिजिकली जाके उसको मर्डर करें, ये हमको पता है कि हमको ये हम नहीं करेंगे। And it is very easy to say regarding us that we will not in our whole life or in the future murder anybody and physically hurt and murder anybody. पर यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई से क्रोध करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। And it is further mentioned in verse 22, but I say to you that everyone who is angry with his brother shall be answerable to the court, and whoever says to his brother, you are good for nothing, shall be answerable to the Supreme Court. और इसमें लिखा है कि ये काफी है कि हम इसको ये गुस्सा करने से हम नरक में जाने के योग्य है। And it is mentioned that once it is enough for us to be angry once and go to hell. सी हम हो सकता है हमने फिजिकली मर्डर नहीं किया रहेगा, बट यू नो अगर जब हम किसी को हर्ट करते हैं अपने शब्दों से, एग्जैक्टली वो मर्डर जैसा है हम परमेश्वर के नजर में। So we may not physically murder somebody, but when we hurt someone with our words, it is exactly same as murdering that person. क्या ये चीज हमको एहसास होता है कि प्रभु मेरे सच में आज मैंने मर्डर किया है? So do we really realize this thing and are examining ourselves that and saying that Lord, I have murdered someone today. ये जब कुछ वीक में मेरे को ये वचन मेरे एकदम फ्रेश था, तो हमने परमेश्वर मुझसे पूछा था कि क्या विजय तू विश्वास करते है कि सच में तूने आज अपने शब्द किसी को गलत बोलकर या उसको हर्ट कर रियल एक मर्डर जैसा है? So this verse was very real in my life these days, and God has been talking to me, and God is saying to me that Vijay, do you really realize that today by speaking rudely with someone you have murdered that person? और मैं परमेश्वर के सामने जाकर रोता नहीं, प्रभु मैंने आज मर्डर किया, मुझे प्लीज मुझे माफ करो, क्षमा करो मुझे। And I would cry, and I would go to the Lord and cry in front of him and say, Lord, today I have murdered this person and please forgive me. इंसान के नजर में नहीं, लेकिन परमेश्वर के नजर में। Not in front of the people, but in front of the Lord. और ये चीज हमको एहसास होना चाहिए। And this thing we must realize. और कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चों को अनुशासन करता हूँ। And so many times it happens that I discipline my children. मैं देखता हूँ कि मैं गुस्से में करता हूँ। And I have seen that I do this in anger. मेरा डिसिप्लिन सही है, मेरा अनुशासन सही है, बट मैं एंगर के साथ, गुस्से के साथ करता हूँ, वहां पर मैं गलत हूँ। So the discipline is right, and the correcting them, that is also right, but the anger with which I do that part is not right. मैं परमेश्वर के सामने घुटना टेकता, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने गुस्से में किया। I bow down before the Lord and come on my knees and say to the Lord, Lord, please forgive me that I did that part in anger. और मैं बिना गुस्से का करने के लिए मुझे सिखाओ मुझे, ताकि मैं अपने बच्चों को सही तरीके से अनुशासन करूं। And I cried to the Lord, and that Lord, please teach me that that I would do these things without anger, and that I will be able to correct my children not in anger. मुझे मदद करो कि मैं प्रेम से उनको अनुशासन करूं। Please help me that I would discipline them with love. और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर मुझे माफ करता है, मुझ पर दया करता है। And I've seen that God really forgives me and He really loves me. और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई आपको रिवॉर्ड या कुछ आदर सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है। And I want to say to you that for these things you would not get any reward or honor, because these things are in secret. और मेरे चर्च के भाई लोग ये सब मेरे बारे में नहीं जानते। परमेश्वर हमारे हृदय में देख रहा है कि वो मनुष्य तो सिर्फ बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है, कितना रॉन्ग एटीट्यूड है, कितना जलन है। So the people in the church, my brothers and sisters in the church and my friends, they don't know these things, but my Lord, He knows that how much anger is there in my heart and how am I from inside. परमेश्वर चाहता है कि वो नैरो वे में जाने के लिए, ताकि अगर हम देखेगा हमको लगे प्रभु मैं नहीं कर सकता और मुझे गुस्सा आता ही है। And Lord wants that we should go through the narrow way
And sometimes I say to the Lord that, Lord, I'm not able to do it because this anger comes to me automatically. और हम परमेश्वर चाहते हैं कि उस नैरो वे में जो ये हमको मुश्किल लगता है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि नैरो वे जो मर्डर करना आसान है, कोई ब्रॉड वे बोल सकते हैं, बट एक नैरो वे जो बिना एंगर का कुछ करे, एक नैरो वे जो परमेश्वर हमको लेके जा सकता है। So it is very easy to get angry and just pour out whatever is there, but to go through the narrow way and walk in the narrow path, it is not so easy, and only God can help us in that. और अगला चीज बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो, तुम्हें कहा गया कि व्यभिचार ना करना। Another thing what is mentioned is that you have heard and it has been said that do not commit adultery. लेकिन यीशु मसीह वहां पर बता रहे कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। And it says that, but I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. ये वचन मेरे लिए कितना मैं सीरियसली लेता हूँ मेरे जीवन में। And this verse, how seriously do I take in my own life? हम जाके व्यभिचार तो नहीं करते, We do not commit adultery, बट मेरा विचार कैसा है स्त्री के प्रति? but how are my thoughts regarding a woman? क्या मैं स्त्री को देखकर एडमायर कर रहा हूँ मन ही मन में? And am I seeing a lady and am I really admiring that lady in my heart, in my mind? मैं मन में डिजायर कर रहा हूँ उसको पाने के लिए। And am I desiring for that lady in my heart? ये सब चीज मेरा वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे चर्च के भाई लोग कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है। And all these things, my wife, my brothers and sisters in the church and my children, they do not see, but the Lord is seeing all these things. और ऐसा होते तो हम जाके परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं ऐसा मेरा विचार है, मुझे प्लीज मुझे माफ करो, क्षमा करो, मुझे एक जीवन दीजिए ताकि मैं मेरे विचारों में शुद्ध रह सकूं। And then I have to go to the Lord and I have to say to the Lord that, Lord, please forgive me and please help me that I would be cleansed in my thoughts and in my attitude. That only you can do. और हम परमेश्वर के पास जाके हम रो सकते हैं, प्रभु मुझे बदल, मैं अभी मेरा जीवन ऐसे ही है, मुझे बदलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो मार्ग जो है जीवन के ओर जाता है बहुत ही छोटा है मेरे प्रिय भाई। And we can go to the Lord and cry out to the Lord that, Lord, please help me, and only you can do this, that. And I want to tell you all that the path that goes to life is very narrow. और भी बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, अपने शत्रु से प्रेम करो। And there are more things that I want to tell you, that you should love your enemies. अपने शत्रुओं को माफ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। And forgive your enemies and pray for them. और उनके लिए कोई कड़वाहट मत रखो, कोई जलन मत रखो। And do not keep any bitterness or any jealousy in your heart against them. और प्रभु ने कितने बार इस चीज में मुझे परखा है कि मैं अपने शत्रु से प्रेम करूं। And so many times the Lord has really examined me and tested me that I should love my enemies. और परमेश्वर ये नहीं देख रहे कि तुम जाके उसको कुछ जाके मार रहे हो, बट परमेश्वर ये देख रहे कि उस भाई के प्रति तुम्हारा एटीट्यूड किस तरह है। The Lord is not seeing that you are in person going to that person and hurting him, but Lord is testing us in the area that what is our attitude towards our enemies. क्या हम ये बोल रहे कि प्रभु उसे माफ कर, वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है? Whether I am saying that, Lord, please forgive that person because he does not know what he is doing. नो, ये बहुत ही सकरा रास्ता मेरे प्रिय भाई। जब तक हम इस चीज को पाएंगे नहीं, तो परमेश्वर से हम कंटिन्यूअसली मांगते रहना है, प्रभु मुझे ऐसा जीवन दो। And this is a very narrow path, my brothers and sisters. Until the time we do not enter through this path, we have to, and do not learn to walk in this path, we have to keep on asking the Lord that, Lord, you help me. और ऐसे कितना यीशु मसीह ने सर्मन ऑन द माउंट या पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने बताया कि मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ भी काम मत करो, तुम्हारा प्रार्थना सीक्रेट रहे, तुम्हारा उपवास सीक्रेट रहे।
And so many times the Lord has told us in this sermon on the Mount that you should not do anything to impress others or just in front of others, but all the prayers and all the good things that you do should be done in secret. और एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, Then a person comes to the Lord यीशु मसीह को बोलता है, and he says to Jesus Christ Luke chapter 13 verse 23. in Luke chapter 13 verse 23. उसने उससे कहा, किसी ने उससे पूछा, सॉरी 23, किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? And someone said to him, Lord, are there just a few who are being saved? और उसने आगे उत्तर दिया, उसने उससे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तरह प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे. And he said to them, strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. मेरे प्रिय भाई, ये वचन पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? My dear brothers and sisters, after reading this verse, what do you feel? मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ. उसने उससे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे. And he said to them, strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मेरा हृदय मैं बहुत डर गया. प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस जीवन को पाने के लिए, और यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है, यीशु मसीह का स्टेटमेंट है. यीशु मसीह बोल रहा है कि बहुत सारे लोग प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे. जब मैंने ये सुना, जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल, मैं बहुत डर गया. प्रभु, मैं नहीं चाहता कि इस मार्ग से मैं भटकूं. So when I read this verse, I was really a little afraid in my heart because I do not want to hear that, and I prayed to the Lord that, Lord, I do not want to be strayed from this narrow way. ये पॉसिबल है कि हम भटक सके, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है कि बहुत से लोग कोशिश करेंगे जाने के लिए, बट प्रवेश नहीं करेंगे. मैं तुमको आगे जाके एक व्यक्ति में बताना चाहता हूँ कि वो भटक गया. And it is possible that we may stray from this narrow path, because Jesus Christ has himself said that there will be many people who will try to enter, who will strive to enter through the narrow door, but will not be able to do so. यीशु मसीह क्या बता रहे हो? आप यत्न करो. And what Jesus Christ is telling here, us here, is that you strive to enter, try to enter. Strive to enter. यीशु मसीह बता रहे हैं कि strive to enter. अपने आप को यत्न बोलो तो अपने आप को हार्ड कोशिश करो. प्रभु, मैं कैसे मिलेगा मुझे? प्रभु, मुझे बताओ. और कब मिलेगा? कितना टाइम जाएगा? कितना समय जाएगा? हमको पता नहीं, बट परमेश्वर देख रहे कि जो व्यक्ति उसको हार्टफुली, पूरे दिल से ढूंढेगा, डिलीजेंटली ढूंढेगा, तो परमेश्वर उसको मिलेगा. So Lord is telling us that Jesus Christ is telling us that strive to enter and try hard to enter. So we have to try hard and keep on trying. And Jesus is telling that whoever will diligently try and keep on trying to enter will be able to find him. मैं बताना चाहता हूँ कि डोंट बी डिस्करेज. तुम निराशा मत हो, तुम हार गए, फेल हो गए रह गए. मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह बोल रहा है कि यत्न करो. And I want to encourage you all that you should not lose hope, or you should not be discouraged, because even if you fail, Jesus Christ is telling us that you should not lose hope and keep on trying. मैं कितने बार फेल हो गया. So many times I myself have failed. कितने बार मैं गिर गया, मैं डिस्करेज हो गया, मैं मिस कर लिया. बट प्रभु मुझे वही बोल रहा कि strive to enter, strive करो, यत्न करो. So many times I have fallen and I have failed, but still the Lord is telling me that you should try again and keep on trying.
इस चीज के लिए बोस्ट मत करो मन में कि मैं चर्च जा रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ और मैं प्रचार कर रहा हूँ। काफी सारे चीज शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि लोग, चर्च के लोग मुझे बहुत स्पिरिचुअली तरीके से जानते हैं, बहुत ही आत्मिक भाई है, बहुत ही दीन भाई है। ये सब कचरे के डब्बे में हम डाल सकते हैं। We should not boast in the fact that I'm going to the church or I'm reading the Bible. All these things, people may praise us that yeah, this brother or this brother is doing so many things or doing service for the Lord. But all these things will be just thrown, and we should also throw these things in the trash. और परमेश्वर देखता है हृदय की इसका, परमेश्वर ये अगर गवाही देगा परमेश्वर कि ये मेरा प्रिय पुत्र मेरे साथ प्रसन्न हो या मेरे इच्छे के अनुसार जी रहे, तो वो स्टेटमेंट वैल्यूएबल है ना कि ये लोग हमारे आजू बाजू में बोल रहे हैं। But Lord sees our heart, and if Lord is testifying regarding us that this person is living according to my word and according to my will, then that praise is commendable. और एक व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में यीशु मसीह के पास जीवन तक आया, बट उसने प्रवेश नहीं किया और वो वहां से चला गया। And I want to tell you regarding a person in the Bible who came who came to Jesus Christ and he wanted to live the life, but he could not enter through that gate. मत्ती चैप्टर 19 में हम देखते हैं, We see in Matthew chapter 19. वो व्यक्ति यीशु मसीह को पूछ रहे हैं कि 16 में 19:16 में 19 और 16 में लिखा है कि एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? It is mentioned in Matthew chapter 19 verse 16. And someone came to him and said, Teacher, what good thing shall I do so that I may obtain eternal life? और मैं थोड़ा आगे बढ़कर 18 पढ़ना चाहता हूँ। उसने उससे कहा, कौन सी आगे? यीशु ने कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, माता पिता का आदर करना, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। And then he said to him, which ones? And Jesus said, we are reading in verse 18 of chapter 19 in Matthew. And Jesus said, you shall not commit murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. और यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपनी माल बेचकर या अपना प्रॉपर्टी बेचकर कंगालों को दे दे, वो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो लेना। And further it is mentioned, Jesus said to him, if you want to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. और देखते वहां पर एक जवान, उसका रिस्पांस कैसा रहा था, परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। And then I want to tell you that how was the response of this young man. It is further mentioned in verse 22, but when the young man heard this statement, he went away grieving, for he was one who owned much property. और लिखा है कि यीशु ये सुनकर वो बहुत चकित होकर कहा कि तो आगे यीशु 25 में लिखा है, ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा कि किसका उद्धार हो सकता है। Then it is mentioned in verse 25, when the disciples heard this, they were very astonished and said, then who can be saved? लिखा है कि यीशु ने उनसे उत्तर देकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। And then Jesus said to them, with people this is impossible, but with God all things are possible. इससे पहले एक स्टेटमेंट यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का राज में धनवान प्रवेश करने के ऊंट के सुई के नाके के निकल जाने के सहज है। यस 24 24 हाँ,
Yeah, and we read in previous verse, in verse 24, and again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. यीशु मसीह ऊपर बता रहे कि एक नैरो वे जो एक ऊँट के सॉरी एक सुई का होल किस तरह होता है, एकदम छोटा होता है, एकदम नैरो होता है, हम देखते हैं. And Jesus Christ is telling here that we see that how narrow, how small is the eye of a needle. It is very small and it is very narrow. तो यीशु मसीह के चेले लोग बोलते भी किसका उद्धार होगा फिर, ऐसा अगर इतना सकरा रास्ता है वो नहीं जा पाएंगे तो किसका उद्धार हो सकता है. Then Jesus Christ's disciples are asking, then who will be saved? Because the way and the path is such narrow and such small. और यीशु मसीह बोलते हैं कि ये इंसान के लिए या मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल. And Jesus Christ is telling that it is impossible. It is impossible with people. क्या मैं और आप हम कह सकते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है? क्या हम यहाँ तक पहुंचे कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ? मैं 100% कन्विंस हो गया हूँ कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ. Whether I and you, we can say to the Lord that, Lord, it is impossible for me. I have reached till here, but it is impossible for me. बट अगर उधर हम स्टॉप करोगे, हम परमेश्वर का जो जीवन है हम मिस कर जाएंगे. But if you stop at that point, then the life of God we will be missing. उधर हमको आगे बढ़ना है कि प्रभु मुझे प्लीज, लिखा है यीशु मसीह आगे बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है कि ये मनुष्य के लिए तो असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है. But we have to go further, because Jesus Christ is telling here that it is impossible with men, but with God everything is possible. हम परमेश्वर पे ट्रस्ट कर सकते कि परमेश्वर मुझे सकार मार्ग में जो जीवन है, जीवन मतलब यीशु मसीह का लाइफ, जो मैं एक बार में संतोष पुनन का मैसेज सुन रहा था, वो इस तरह से बोल रहा था कि क्या मैं परमेश्वर को गुस्सा दिला सकता हूँ. So we have to pray to the Lord and ask the Lord that, Lord, you help us to go to walk in this narrow way. And brother, can you repeat the later part? मैं बोल रहा था कि मैं संतोष पुनन ब्रदर का मैं शेयरिंग सुन रहा था, वो इस तरह से बता रहा था, क्या मैं परमेश्वर को गुस्सा दिला सकता हूँ. I was hearing a sermon from brother Santosh, and he was saying that whether I can make the Lord angry over me. क्या मैं परमेश्वर को पाप में गिरा सकता हूँ? Whether I can make the Lord to fall in sin. Impossible. It is not possible, impossible. क्योंकि परमेश्वर का नेचर है, तुम कितना भी उससे नफरत करो, परमेश्वर वो लव करेगा. Because it is Lord's nature that how much you hate him, but still he will love you. तो सेम नेचर परमेश्वर हम सभी को देना चाहता है, वो अनंत काल का जीवन जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं. And the same life the Lord wants to give all of us, the life of eternity, the life of God. तो परमेश्वर के पास हम जाके मांग सकते हैं कि प्रभु मैं वो जीवन तक नहीं पहुंचा, मुझे प्लीज मुझे मदद करो कि मैं वो जीवन को पाने के लिए दिन प्रतिदिन में स्ट्राइव करूं. And we can ask the Lord that, Lord, I have still not reached that life, and please help me day by day so that I can enter that life and enter that gate. सबको प्रभु ये चीज मदद करे कि प्रभु बाकी सब चीज में मैं प्रभु मेरे अंदर इस तरह कार्य कर रहे हैं कि बाकी सब जो एक्सटर्नल चीज है, जो बाहर का चीज है, लोग हमको तारीफ करते हैं, दिल बोलते हैं, कुछ काम का नहीं है. मैं कन्विंस हो रहा हूँ, कन्विंस हो गया प्रभु कि जो कुछ भी मेरा सीक्रेट लाइफ है जो तू देख रहा है वही मेरे लिए वैल्यूएबल है. मैं परमेश्वर के सामने किस तरह जी रहा हूँ वो वैल्यूएबल है, ना कि इंसान के सामने. And people only see our external life, and I am fully convinced that the external life is just to impress the people, and it is important for the people, but the inner life is
is important, and the Lord is seeing our inner life, and He has to do with our inner life. प्रभु हमको मदद करे इस सकार मार्ग जाने के लिए, हम सभी को, मुझे, आप सभी को मदद करे. May the Lord help us all to go through this narrow way, and may He help all of us. Thank you. Thank you. बहुत प्रोत्साहन वचन था, और मेरे मन में भी यही आ रहा था कि वो जवान व्यक्ति जो यीशु के पास आकर कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु ने उनसे कहा कि आज्ञाओं को पालन कर. लेकिन बाद में कहता है कि मैं सब आज्ञाओं को पालन कर रहा हूं. बाद में यीशु बोलते कि एक, अगर आप सिद्ध होना चाहते हो तो अपना संपत्ति बेचकर कंगालों को दो, और इतना ही नहीं कि इसके बाद मेरे पीछे हो जाओ. तो ये बहुत प्रोत्साहन वचन है कि एक सतर्क रास्ता में जाने के लिए परमेश्वर हमें चीज दिखाता है. इस धरती पर हमें कुछ चीज छोड़ना है, जैसे कि मेरे पीछे होना है तो कभी कभी अपना माँ बाप को या अपने परिवार को या कई चीज, धन को, कभी कभी कई चीज हमको त्यागने के लिए कहेगा. हम सोचेंगे कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो चीज जो है मुश्किल है इस धरती पर, लेकिन इसके बाद जो मिलने वाली लाइफ है वो बहुतायत लाइफ रहेगा. तो ये वचन मुझे विजय से बहुत प्रोत्साहन मिला. That word is the words of Jesus, which says that enter through the narrow gate, for the gate is small, verse 14 of chapter 7 Matthew, and the way is narrow that leads to life, and few are those who find it. और हमने जो वचन पढ़ा मत्ती के अध्याय 7 और वचन 14 में, कि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं. So that is the fact of life, what Jesus has said, that the gate to heaven, or the gate is a narrow gate, and not many are called, but not many want it. So only few go through that. और हमारे जीवन की एक वास्तविकता है कि यहाँ पर जो वचन में लिखा है, स्वर्ग का जो द्वार है, प्रवेश करने का जो फाटक है, वह बहुत ही सकरा है, और बहुत से लोगों को बुलाहट है उस मार्ग से प्रवेश करने के लिए, लेकिन वह सकरा है, इसीलिए थोड़े से हैं जो उसमें से चाहते हैं उसमें से जाना. So Matthew chapter 22 verse 14 says, मत्ती अध्याय 22 और वचन 14 ऐसे कहता है. Yeah, Matthew chapter 22 verse 14 says, many are called, but few are chosen. मत्ती अध्याय 22 और वचन 14, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं. This was Jesus talking about the wedding feast, and many are called, but few are chosen. The ones who have the wedding garment, they are the ones who are chosen. और यहाँ पर यीशु मसीह जो विवाह भोज में बुलाए गए लोगों के विषय में बता रहे कि बुलाए हुए तो बहुत से, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं. जिन्होंने विवाह के वस्त्र पहने हैं, केवल वे ही चुने गए हैं. So Jesus died for all, that he wants all men to be saved, and the gospel is being preached all across the world. But the ones who receive Jesus are the ones who are chosen. और यीशु मसीह ने सभी मानव के लिए, मनुष्य के लिए अपने प्राण दिए हैं, और उसने सभी को उद्धार के लिए अपने पास बुलाया है. लेकिन जो कि उसके, और सभी को सुसमाचार सुनाया जाता है, लेकिन जो उसके सुसमाचार को ग्रहण करके उसके पास आते, वे ही उसके चुने हुए हैं. God so loved the world that he gave his son, that the world may be saved. That God wants everybody to be saved, but the choice of man makes it that only those who have received him becomes God's children, and who are the chosen ones. और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया, और जगत को, ताकि उद्धार पा सके हम सभी. लेकिन जो परमेश्वर की इस बुलाहट को स्वीकार करके ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह के पास आते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं और संतान बनते हैं. So now we have seen about two categories of people, called and chosen. अब हम दो समूह के लोगों के विषय में बात करें. पहले जो बुलाए गए हैं और दूसरे जो चुने गए हैं. So many are called, but few are chosen.
तो बुलाए गए तो बहुत से हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। So the ones who are chosen are both called and chosen. तो जो चुने गए हैं वे बुलाए भी गए हैं और चुने गए वे दोनों हैं। Now, that was written in Matthew, the first book of the New Testament. Now, let us look at the last book of the New Testament. और यह जो बात लिखी गई है यह नए नियम के नई वाचा के पहले पुस्तक में लिखी गई है। अब हम आखिरी पुस्तक में देखते हैं। In Revelations 17:14, it says, और प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और उसका 14वां वचन ऐसे कहता है, Now we have come to the end of the age. Everything is over. And verse 14 says, These will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because he is the Lord of lords and the King of kings, and those who are with him are the called and chosen and faithful. और अब हम इस पूरे युग के पीढ़ी के समाप्त होने के बाद अंत के घड़ी में आ पहुंचते हैं। वहां पर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और 14वें वचन में पढ़ते हैं, वे मेमने से लड़ेंगे, मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और जो चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। So here we see the three, the third category is also there of faithful. और यहाँ पर हम अब तीन समूह को, या कह सकते हैं 3 प्रकार के लोगों के समूह को हम पाते हैं। और यहाँ पर तीसरा जो समूह है वहां पर हम जो विश्वास योग्य है, जो विश्वासी हैं। So these people they're called, they are chosen, and they are also faithful. तो ये लोग जो है वो बुलाए गए हैं, ये चुने हुए हैं और वो विश्वास योग्य भी है। That is a very few number. और यह जो है बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी सी गिनती है। Brothers and sisters, we are called to be such people. और भाई और बहनों, हम ऐसे लोग होने के लिए ही बुलाए गए हैं। And it is basically in our hidden lives when nobody is watching. I mean, Sunday, we can say there are people who are Sunday Christians, and there are others who are everyday Christians. अब भाई और बहनों, हमारे छुपे हुए जीवन में, गुप्त जीवन में विशेष करके हम इसके लिए बुलाए गए हैं। जैसे कि कुछ विश्वासी होते हैं जो केवल रविवार के ही मसीही कहलाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हर दिन मसीही कहलाते हैं। So in Luke chapter 16 verse 10, लूका अध्याय 16 और वचन 10 में हम पढ़ते हैं, it says, He who is faithful in very little thing is faithful also in much, and who is unrighteous in very little is unrighteous in much. लूका अध्याय 16 वचन 10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। Brothers and sisters, this is our calling, to be faithful in little things, and to walk before God in a hidden life. Hidden life, the word hidden life means when nobody is looking, nobody is watching us, and we know that God knows our thoughts, God knows we heard from Vijay the things that he was saying. It is all a hidden life before God. That is faithfulness. और भाई बहनों, हम जैसे वचन में पढ़ते हैं कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, और हमारा जो गुप्त जीवन होता है, मेरा कहने का मतलब है गुप्त जीवन से कि ऐसा जीवन जहाँ पर कोई भी मनुष्य, कोई भी जो हमें कोई भी मनुष्य जो है वह नहीं देखता है हमारे सोच विचार में क्या चलता है। जैसे भाई विजय बता रहे थे, ऐसे जीवन में हमें प्रभु के सामने रहना। So we are not at all concerned what people think, but we are concerned about what God thinks about us. और हम इस विषय में नहीं सोचते और चिंता करते कि लोग क्या कहते हैं हमारे विषय, परंतु हम यह सोचते हैं कि प्रभु क्या सोचता है मेरे विषय में। So that is a wonderful life to live. तो एक ऐसा ही अद्भुत जीवन है जिसे हम जी सकते हैं। So may God help us all to be not only called, not only chosen, but to be the called, chosen and faithful. तो इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है, न केवल बुलाया है परंतु चुना, हम बुलाने के बाद चुने हुए भी होने के लिए बुलाया है कि हम उसके चुनने के बाद हम विश्वास योग्य भी बन सके। Amen. आमीन। Entering the narrow gate, और सकरे फाटक से प्रवेश करने के विषय में हम देख रहे हैं। we should understand that Jesus is the only gate that we enter through.
और हमें यह बात समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह केवल एक मार्ग है जिसके द्वारा हमें प्रवेश करना है। I'm not going to talk about the fruits of it, but I want to speak the love that we have for God. अब मैं इस विषय पर ज्यादा गहराई से आपसे बातें नहीं करना चाहता, परंतु उस प्रेम के विषय में जो प्रभु हमसे करता है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। I said I'm not going to speak about the fruits of it. I'm going to speak about the love of God. और मैं इसके फलों के विषय में आपसे नहीं बातें करना चाहता, परंतु प्रभु के प्रेम के विषय में बात करना चाहता हूँ। So I would read from John chapter 10, verse from 7 to 10. Brother, please. और मैं पढ़ना चाहता हूँ योना अध्याय 10 वचन 7 से 7 to 10। John chapter 10, verse 7 to 10. और योना अध्याय 10 वचन 7 से 10। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। So here Jesus is reminding us that he's the door and he's the gate also that we need to enter in. और यहाँ पर हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं हूँ और मुझ में से ही होकर प्रवेश भीतर किया जाएगा। And whoever comes before him are known as thieves. अब वह कहते हैं कि मेरे पहले जो भी आए थे वे सब चोर और डाकू हैं। The question is, in whose name do we try to enter the gate? Do we try to enter the gate in the name of Jesus, or we have some other name that we are trying to enter? तब हमारे लिए प्रश्न ये उठता है कि हम किसका नाम लेकर द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या हम यीशु मसीह का नाम लेकर उस द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं या हम फिर किसी और का ही नाम लेते हैं? We should remember there's no other name given to us in heaven, on earth, and beneath. There's only one name that's above all names, and the name is Jesus. क्योंकि हमें ये बात स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हमें कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे, केवल यीशु मसीह का ही नाम हमें दिया गया है। That's why God is telling us, love your Lord with all your heart and with all your soul, with all your strength. इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। So the love of Jesus is not there if you have a love for something else besides Jesus. Then that love is going to be a thief for you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर यीशु मसीह के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को छोड़कर किसी और बात के लिए यदि आपके हृदय में प्रेम है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह प्रेम आपके लिए एक चोर डाकू के समान बन जाएगा। That's why, as it was said just now, that when Jesus tells that person to sell all your belongings and follow him. क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ जैसे हमने उस वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति से कहते हैं कि अपना सब कुछ जो है वह बेच कर कंगालों को दे दे। He couldn't sell his belongings, so he could not follow Jesus because he had more love for his belongings than Jesus. और वह व्यक्ति अपने सब कुछ बेचने को तैयार नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी और उससे वह प्रेम करता था। This is not regarding the fruits. I'm talking about the love. So how much love do we have for Jesus, or besides Jesus, who we love the most? और यही मेरा मानना है और प्रश्न है कि हम किससे प्रेम ज्यादा करते हैं। मैं फल के विषय में नहीं कहना चाहता, परंतु क्या हम यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करते हैं। I will read another chapter from John 14, verse 6. और मैं एक और वचन आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 6। Yeah, brother. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। So Jesus is only the way and the key. No one can enter through any other means or any other name. It's only Jesus. तो मैं कहना चाहता हूँ कि केवल एक ही मार्ग है और वह यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह को छोड़ और कोई भी किसी दूसरे अन्य माध्यम से मार्ग से प्रवेश नहीं कर सकता।
So we must have more love for Jesus than any other thing in our life. तो हमारे जीवन में हर एक बातों को छोड़कर सबसे ज्यादा प्रेम हम यीशु मसीह से करें। I give you the answer for this. The same is in same John 14, verse 23 and और इसका 24. उत्तर मैं आपको उसी यूहन्ना 14 अध्याय के 23 और 24 वचन से देना चाहता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, that's the answer. We must ask ourselves, do we really love Jesus or we have some other love? Amen. तो यही प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ या मेरे मन में किसी और के लिए ही प्रेम है। आमीन। I want to take this opportunity to thank the Lord and just confess my hope for this new year. और नए वर्ष के जो सभा थी उसके दौरान मैं प्रभु का धन्यवाद नहीं कर पाया था। उस सभा में मुझे समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं इस समय का इस्तेमाल करके प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरे इस नए वर्ष की आशा को अंगीकार करना चाहता हूँ। Sometime back, brother Zach had personally given me an advice, like I think 4 or 5 years ago, over email. और लगभग 4-5 वर्ष पहले की बात है जहाँ पर भाई जैक ने व्यक्तिगत रूप से मुझे ईमेल के द्वारा कुछ सलाह दी थी। He said that he's supremely happy in his Christian life, in his earthly life. He just follows this principle. He says that I expect nothing in return from anybody. My job is only to love and do good to others and leave it to God. और वहां पर भाई जैक ने मुझसे ऐसे कहा कि मैं अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन करता हूँ और मेरा जो जीवन मैं परमेश्वर के सम्मुख और मनुष्य के सम्मुख जीता हूँ, मैं उस जीवन से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और मैं किसी और से कुछ पाने की उम्मीद और आशा नहीं रखता। केवल जो मेरा कार्य मैं उसे करता हूँ। His job is only to love people in return and don't expect anything. और उनका जो कार्य है वह यही है कि वह लोगों से प्रेम करे और बदले में उनसे कुछ पाने की आशा ना रखे। Yeah, I felt that is really an important advice to every one of us. And I personally took it as a challenge, like not to expect anything from anybody. If my opinion is heard, unheard, or something of that sort, I should not have any expectation that I should, my opinion should only be heard or something like that. So I took it as a challenge and I wanted to obey that and try doing that. And I find that I was relaxed and more happy in last few years. और यह एक अच्छी बुलाहट है और अच्छी बात है जिसका हम सभी अनुसरण कर सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन के विषय में कि इस बात को जो उन्होंने मुझे सलाह दी थी, मैं एक चुनौती के रूप में अपने जीवन में लेता हूँ कि मेरा जो मानना होता है किसी बात के प्रति, मेरा जो विचार होता है, यदि वह विचार स्वीकार नहीं भी किया जाए तो भी मैं औरों से बदले में कुछ भी पाने की आशा, मनुष्य से कुछ भी पाने की आशा नहीं रखूं। और यह एक चुनौती भरा जीवन है जिसे परमेश्वर ने जीने के लिए बुलाया। और मैंने पाया है कि इन बीते हुए कुछ वर्षों में मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ केवल इसी तरह के औरों से बिना कुछ पाने की लालसा के साथ मैं उनसे प्रेम करूं। Yeah, my job is only to love them, love those who criticize me or love those who don't keep my opinion. My job is only to love them and leave it to God and just be thankful. And it quite changed my life drastically when I took that advice, because I had a lot of expectation from people. And और मैंने अपने when I applied that, I felt relaxed and happy and just going with my business and satisfied with my meaning satisfied as in I'm happy with myself and enjoying the presence of the Lord and seeking to grow in Him. Basically, I am judging myself only.
अब मैंने अपने जीवन में पाया है कि प्रभु ने मुझे सिर्फ इसी कार्य को करने के लिए बुलाया कि मैं औरत से प्रेम करूं और बदले में उनसे कुछ पाने की आशा ना रखूं। और जब से मैंने इस बात को चुनौती के रूप में और गंभीरता से लेकर मेरे जीवन में मैंने पालन करना शुरू किया है कि मैं औरों के विषय में मैं ज्यादा कुछ चिंता न करते हुए केवल खुद को मैं अपने आप को लगातार मेरे जीवन को जांचते रहूं और प्रेम करने में लगा रहूं। तो मैंने पाया है कि मेरा जो जीवन है, आत्मिक जीवन है, वो बहुत ही अद्भुत रीति से उसमें बदलाव आया। मैंने अपने जीवन में बढ़ोतरी की है और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपने इस जीवन से मैं खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। Yeah, whether it's home life, whether it's office life, whether it's church life, I seek to rejoice and relax in the Lord. Whether my opinion is heard, not heard, and give glory to God. और चाहे मेरा व्यक्तिगत जीवन हो या मेरा पारिवारिक जीवन हो, या मेरे काम के क्षेत्र में जो मेरा जीवन है, मैंने हर समय इसी बात को महत्व दिया है। और मैं प्रभु की इच्छा को इस बात पे पूरा करने के द्वारा मैं खुश और शांति में रहता हूँ। कि भले ही मेरा जो मानना है या मेरे जो विचार है उसे कोई अपनाता है या नहीं अपनाता है, लेकिन मैं प्रभु की हुजूरी में रहता हूँ। Yeah, so going into 2022 and years ahead, I want to keep growing in this principle of God, of being supremely happy. As his word says that Jesus was anointed above all his companions because he hated sin and loved righteousness. That we read in Hebrews chapter 1. So I want to follow that principle. Thank you. Amen. और इस वर्ष 2022 में और आने वाले दिनों में, वर्षों में मैं इसी बात को अपने जीवन में मानना चाहता हूँ कि मैं जो इस कार्य को करता है, कि जैसे यीशु मसीह ने पाप से घृणा की है और उसने धार्मिकता और न्याय से प्रेम किया, इसलिए उसे सबसे ज्यादा औरों की तुलना में ज्यादा परमेश्वर ने अभिषेक भी किया है। तो वैसे ही मैं अपने जीवन के विषय में चाहता हूँ। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ समय के लिए। मुझे ये वचन आ रहा था, ये यूहन्ना 18 और 36 हिंदी में पढ़ सकते हैं कोई? हाँ, या सिस्टर हिंदी में पढ़ना है। हाँ, यूहन्ना हिंदी में 18 का 36। मेरे पास तेलुगु बाइबल है। हाँ हाँ, मैं पढ़ती हूँ। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। बस सिस्टर, यीशु जब शरीर में था तो उनके ऊपर बहुत ही सारा विपत्ति आया है। ऐसा नहीं है वो परमेश्वर का पुत्र है तो उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं था। शारीरिक रीति से उन्होंने कई सारा विपत्ति का सामना किया है। तो वो बंदी करके लेकर गया था राजा के सामने, तभी राजा उसको क्वेश्चन करता है, पूछता है आप राजा है क्या? तो तो यीशु का समाधान ये होता है, हाँ, लेकिन मेरा राज्य संसार के नहीं है। तो हम ट्रांसलेशन Not required, sister. It's तो परमेश्वर का राज्य यहाँ का नहीं है, फिर भी उन्होंने शरीर में हर एक विपत्ति का, हर एक तकलीफ का सामना किया है। तो मतलब उसने एक ऐसा रास्ता है जो ऐसा जिसमें सारा तकलीफ से जाना पड़ा उनको। तो अगर हम उसी राज्य के, उसी यीशु का बच्चे हैं, हम उसी यीशु का आराधना हम कर रहे, तो हमें भी उन सारी विपत्ति का सामना करते हुए हम उसी राज्य के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक उदाहरण है। वो खुद परमेश्वर का पुत्र होकर उसने सारी बातों को सह लिया है और उन्होंने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। तो मुझे ये पढ़ के, ये सुन के ऐसा लगा सच में हमारा भी राज्य यहाँ का नहीं है। हम भी यहाँ इस संसार के लिए नहीं जीना चाहिए, क्योंकि संसार में जो भी तकलीफें होता है, जो भी हमें सिखाता है, जो भी परिस्थिति आता है, वो सारी बातें हमको उस पतली गली से जाने के लिए उत्साहित करता है। अगर हम एक साल, एक
एक नई सिक्का है, वही परिस्थिति वापस परमेश्वर लेके आएगा सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम छोटा बच्चे उनको देखते हैं, अगर उसका फर्स्ट क्लास पास नहीं हुआ है, बराबर स्कूल नहीं गया है और बराबर उसने एग्जाम नहीं दिया है, तो टीचर बोलेगा अगले साल तुम फर्स्ट में ही रहना। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो उसी तरीके से परमेश्वर का राज्य में भी हम नहीं सीखते हैं, हमें सिखाने के लिए उसकी लोगों को रखा है हर जगह। तो जब हम वो बातें को हम हमारा जीवन में, भले कठिन लगता है, वो तकलीफ लगता है, लेकिन परमेश्वर का भी स्कूल है, वो स्कूल में वो वापस हमको उस परिस्थिति में डालेगा। क्योंकि ये मेरा जीवन में मैंने अनुभव किया है, और वो हमें सिखाने के लिए वापस लेके जाएगा। क्यों? इसीलिए उन लोगों को रखा है ताकि हमें पीछे वापस भेजे, ताकि हम उस पतली गले से हट नहीं जाए और उसके राज्य से हटने जाए और इस संसार की बातों में हम गुम नहीं हो जाए। इसलिए वो दिन रात उसका नजर पल के भी नहीं झपकता है। वो हमारा ऊपर ध्यान रखता है और हमारा ऊपर ये ध्यान रख के हमारे साथ वो हमको मार्गदर्शन करता है। इस संसार में, इस कलीसिया में ऐसे लोगों को रखा है ताकि हमारा पर्सनल जीवन पे देखे, क्योंकि ऐसा ही हमको कोई रोकता नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा है, उन लोगों को रखा है। हमने बाइबल स्टडी में भी देखा था, रोमन्स किताब में, क्योंकि कुछ बातें हैं हमको लोगों को उस अगवा को स्टॉप करना पड़ता है, उसके लिए उन्हें नियुक्त किया है, उसके लिए उनको रखा गया है। तो अगर वो हम नहीं कर पाते हैं, हम पतले गले के ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर वापस हमें पीछे लेके आएगा और हमको बातें सिखाएगा और अनुभव देगा, और उसके बाद हमको वापस, क्योंकि ये मेरा जीवन में हुआ है, तो मैं इस वचन से उत्साहित हुआ। सच में कई बार ना हम लोग क्यों ऐसा परिस्थिति में पड़ जाता है, हमको समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है हमको बोलना चाहिए, एक ऐसा उद्रेकित स्पिरिट आता है, वो पवित्र आत्मा नहीं होता है, ऐसा लगता है हमको इस बात में हमको स्टैंड लेना है, बोलना है, करना है। लेकिन कई बार हम संसारिक की स्पिरिट नहीं जानते, हम सोचते हैं हाँ सही है, तो लेकिन परमेश्वर का राज्य कहता है यीशु हमेशा हर एक के सामने नम्र होकर सह लिया है, क्योंकि उसने पौल भी कहता है ना, मेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, मेरा युद्ध अंधकार की शक्तियों से, जो हमें इस पतली रास्ता से हटाना चाहते, उन सारी अंधकार हमारा शरीर से है, हमारी भावनाओं से है, हमारी खुद में जो हो रहा है उससे हमारा युद्ध है। तो हमको आत्मा में जागना बहुत ही जरूरी है, मुझे उस तरीके से परमेश्वर ने सिखाया। थैंक यू। आइए हम इस मैसेज की ओर देखेंगे कि लूक चैप्टर 23। So we will move into the message from Luke chapter 23. 39। Luke chapter 23 verse 39. So वहां पर हम देखते हैं कि यीशु के साथ एक दो कुकर्मियों को क्रूस पर चढ़ाया गया। Over here we see that along with Jesus, two more criminals were being crucified. और उसमें से एक कुकर्मी ने कहा कि क्या आप मसीह नहीं है? अगर आप मसीह हो, अपने आप को और हमें भी बचा लो। And one of the criminals said that, are you not the Christ? Save yourself and us. वर्स 40। और दूसरे कुकर्मी ने कहा, उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहे। वर्स 41। और हमें न्यायानुसार दंड पा रहे, क्योंकि हम अपने कामों को ठीक फल पा रहे, पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। सिस्टर 41। Yes, and in 40 it says that the other criminal rebukes and says, do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And in 41, and we indeed are suffering justly, for we are receiving what we deserve for our deeds, but this man has done nothing wrong. Verse 42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वर्स 43। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। And further in 42 it says, and he was saying, Jesus, remember me when you come in your kingdom. And he said to him, truly I say to you, today you shall be with me in paradise.
डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वचन मुझे बहुत स्पर्श हुआ कि एक कुकर्मी ने कहा कि अगर आप मसीह हो, अपने आप को भी बचाओ, हमें बचाओ। Brothers and sisters, this verse touched me a lot because there was one criminal who said that if you are Christ, then save yourself and us also. किसी ने कहा कि प्रभु, अगर मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु है, राजा है, जब आप आपके राज्य में जाएगा मुझे सुधि लेना। And the other one said that, Lord, if you are God, and he said this with faith that when you enter into your kingdom, remember me also. ये दूसरे कुकर्मी का जो शब्द है मेरा दिल को बहुत छू लिया। उसने कहा कि मैं ये विश्वास करता हूं आप राजा है, आप प्रभु है। And this other criminal's words touched me a lot because he said that you are king और प्रभु है, and you are Lord. और दूसरे है, अगर आप राजा प्रभु है, आपके पास एक राज होगा। And because you are Lord, then you are king, then you will have a kingdom. और जब आपके पास एक राज होगा, तो इस कुकर्मी ने कहा कि मैं आपसे मांग लेता हूं कि अपने राज्य में मुझे लेने के लिए या मुझे याद करने के लिए इजाजत मांग रहा था। And since he will be having a kingdom, that's why he asked permission to be able to enter into the kingdom. So ये वचन हमें इतना प्रोत्साहन करता है कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए सबसे पहले चोर लोग, व्यभिचारी लोग और सबसे पहले आगे रहेगा, लेकिन फरीसी लोग सबसे पीछे रहेगा। So this is a very encouraging word that in the kingdom of God, the first people to enter in would be the thieves and the criminals, and the Pharisees would be far behind. ये कुकर्मी जो प्रभु को स्वीकार किया है क्रूस पर, ये हमारे लिए एक चिन्ह है कि हम कितना भी घोर पापी है, हमारे लिए मौका है कि हम स्वर्ग में जाने के लिए। And this criminal who accepted Jesus on the cross is an example, is like a symbol for us that no matter how much sins we are in, we can still enter into God's kingdom. शादी होने के बाद मेरा वाइफ ने मेरा उंगली में एक अंगूठी पहनाया। So on being married, my wife put a ring on my finger. और मैं भी उसे एक अंगूठी पहनाया। And even I put a ring on her finger. So ये अंगूठी क्या है कि ये मेरा पत्नी ने मुझे शादी की एक चिन्ह में पहनाया। And so what is this ring? This ring is a symbol of our marriage. और लेकिन ये रिंग मेरा वाइफ नहीं है, मेरा पत्नी नहीं है। But this ring is not my wife. उसी तरह मैं मेरा वाइफ को एक अंगूठी पहनाया, लेकिन वो अंगूठी मैं नहीं हूँ, लेकिन वो अंगूठी ये दर्शाता है कि मेरा शादी का दिन जिन्होंने मुझे पहनाया। And similarly, the ring which I put on her finger, that is not me, but it is a symbol of our marriage, that on that particular day, it symbolizes our marriage. या अगर हम पहले कोरिंथी 11वां अध्याय 23 अगर रेफर पढ़ेंगे, and we read in 1 Corinthians chapter 11 verse 23 से हम पढ़ेंगे कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया और धन्यवाद करके उसने तोड़ी और कहा कि यह मेरा देह है, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। 24 verse. Yes. 1 Corinthians chapter 11 verse 24 we read where Jesus says that he had given thanks and he broke the bread and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." जैसे कि मैंने कहा कि वो अंगूठी जो है मेरा पत्नी नहीं है, वो अंगूठी है लेकिन एक चिन्ह है। And just like I said that the ring is not my wife, but it is a symbol. उसी तरह यीशु ने कहा कि उसने रोटी तोड़ा और कहा कि ये मेरा शरीर की एक चिन्ह है, लेकिन ये मेरा शरीर नहीं, एक चिन्ह है। And in the same way, when Jesus broke the bread, he said that this is my body. He said this is a symbol. It is like a symbol. या वर्स 25 इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरे भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरा लहू में नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। And in verse 25 it says, in the same way he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." यहाँ पर भी यीशु कहता है कि उसने कटोरे में प्याला लिया और कहा कि ये जो मैं कुछ दिनों के बाद क्रूस पर जाने वाला हूँ और सारी जगत के लिए लहू बहाने वाला हूँ, तो उसकी लहू का चिन्ह में आप आज का दिन ये
ये कटोरे में प्याला पिया करो। So over here, Jesus says the same thing, that this is also a symbol that after few days he would be crucified on the cross and he would shed his blood, and this cup would be a symbol for all of that. So brothers and sisters, verse 26 बहुत important है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। And brothers and sisters, verse 26 is very important, which says, "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." यहाँ पर ये वचन कहता है कि हम इस प्रभु भोज में भाग लेने से हम हमारी मुंह से कुछ सुसमाचार बांटते नहीं, लेकिन अपने कार्यों से प्रभु का कार्य प्रकट करते हैं कि जब तक वो ना आए हम इसमें भाग लें। And while we are taking part in this, in the bread and the drinking the cup, we are verbally we are not saying anything, but through our actions and behavior we are saying something. या हम एक सुसमाचार को इस कार्य करने से प्रकट करते हैं। And we are brother, please repeat करेंगे? हाँ, हम ये कार्य हम करने से प्रभु की गॉस्पेल को हम प्रकट करते हैं। And by doing this, we are showing and reflecting the gospel of Christ. तो प्रभु ने एक तरीका दिया है, इसको किस तरह पालन करना है, वर्स 27। And the Lord has given us instructions how to do this in verse 27. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरों में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। And it says, "Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord." तो ये वचन अपने आप को जांचने के लिए है कि आप सोचेंगे कि मैं कैसे भी इस प्रभु भोज में भाग ले लूं, नहीं तो इस रोटी खाऊं या इस प्याला में जो रस है वो पी लूं, या कोई मामूली चीज नहीं है, आप इसको सीरियस गंभीरता से लेना है। So this verse helps to examine ourselves before we take part, and to know that we do not take part in the eating and the drinking in a very light manner, but take it very seriously. या कई लोग सोचते हैं कि जब मेरा पानी का बपतिस्मा हुआ तो मेरे स्वर्ग राज्य जाने का एक मार्ग खुल गया है। इसी तरह से लोग सोचता है कि ये प्रभु भोज और रोटी खाने से भी मेरा एक रास्ता खुल गया है प्रभु के पास जाने के लिए। नहीं है ब्रदर्स। And a lot of people think that when they have taken water baptism, the way has been opened for them to enter into heaven, and the same they think about taking part in the breaking of bread, that their way has been opened to enter into heaven, but it is not so. So इधर लिखा है कि अनुचित रीति से इसको पालन करना है। And it is written that it should not be taken in an unworthy manner. So किस तरह लेना है, verse 28। So what is the manner in which we should participate in this? It says in verse 28. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में खाए और उस कटोरे में से पिए। And it says, "But a man must examine himself, and in so doing he is to eat of the bread and drink of the cup." So my brothers and sisters, ये वचन मुझे बहुत स्पर्श हुआ कि हम परमेश्वर ने एक तरीका दिया, जैसे कि आज विजय ने भी शेयर किया है कि हमें इस संसार में एक तरीका दिया गया है, एक रास्ता दिया गया है, जो सकरा मार्ग दिया गया है, वो सारे चीज इसमें छुपा हुआ है। वही मार्ग से हमके चलना है जो प्रभु हमको दिखाता है। So brothers and sisters, this verse touched me a lot, and even as brother Vijay shared about the walking into the narrow way, so we have to keep walking into the narrow way which will lead us there. या इस संसार में कई रास्ता है जो चौड़ाई है, लेकिन उन सारी चीजों को हमको छोड़ना है, लेकिन हमें प्रभु एक मार्ग का है, विश्वासियों को उसी मार्ग पे हम चलना है। There are many broad ways in the world, but we have to leave all those ways and we have to follow into the narrow path which God has shown us. अगर आपने अभी तक विश्वास नहीं किया है या पाप से आप अभी भी लड़ रहे हैं, तो प्रभु विश्वास योग्य है पाप क्षमा करने के लिए। अभी भी आप प्रभु के सामने जाकर कह सकते हैं कि प्रभु मैं अभी तक पश्चाताप नहीं किया, मन फिराव नहीं किया है, तो प्रभु आपको अभी भी मार्ग रखा है। आप प्रभु के सामने जाकर आप पश्चाताप कर सकता है, मन फिराव कर सकता है। If you are still fighting with sins, if you have still not asked for forgiveness and repentance from the Lord is faithful even now
to forgive you if you repent. सो आंख बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। So we will और close our eyes and spend a moment in prayer. प्रभु आपको कहेगा कि ऐसा ऐसा मार्गों, ऐसे ऐसे जगह से आपको परिवर्तन होना है, मन फिराव करना है, तो आप इमीडिएटली आप कर सकते हैं प्रभु के सामने जाकर। The Lord will show you the areas in which from which you have to repent and turn around. So you can do that.